Here with us on the news track, there's been so much talk around the Ram temple itself, but not everyone has a very clear visual sense of what the new Ram temple will look like. Today, new high-resolution 3D images were put out which give a good feel of what the temple will look like, and also we heard about the timelines leading up to 2024 by when the trust hopes that the temple will be ready for the public. Here's the story. The construction of the Grand Ram Mandir has begun with the historic Bhumi Pujan on Wednesday. 3.5 years from now, the temple is expected to be completed in its full glory. And when that happens, this is what the Ram Mandir will look like. The entire complex will be spread over more than 67 acres. The temple itself will cover 17,500 square meters. It will have 5 mandaps. The 3-storied structure will have 106 pillars on each floor. 5 domes will grace the temple. The height of the temple will be 360 feet with a width of 140 feet. 2 ramps will be built to help the movement of the differently abled. The temple complex will be surrounded by greenery and gardens. A 360-degree theatre will depict the life of Lord Ram. This is in addition to a special gallery and an adjoining museum. A Vedic Yagyashala, library and research center will also be part of the Ram Mandir project. There will be a Satsang Bhavan and a convention center for devotees. The temple will light up at night with a sound and light show. The Ram Mandir heralds a new era, not just for Ayodhya, but for the entire country. Bureau Report, India Today. It's not just the temple that's being worked on in a big way. A massive effort is on to try and build a huge Ramayan circuit. All the areas where Lord Ram visited, which were a part of his life, are being given a facelift, an effort to make this a global center for tourism. Not just a new era for the ancient temple town, but a dizzying vision of India's religious tourism. हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे. Elaborate and imposing, marvels of India's religious diversity, the ruling BJP's push to unlock the economic potential of this sector. अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं. और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया. The Modi government's Swadesh Darshan scheme is moving ahead on priority. 75 projects worth almost 6,000 rupees sanctioned so far over the past 5 years. Trains and buses have been launched for the Ramayan circuit as part of PM Modi's Swadesh Darshan plan. The Ramayan circuit covers the famous destinations connected to the life of Lord Ram as mentioned in the Ramayana. Ayodhya, Nandigram, Shivingvirpur, Chitrakoot in Uttar Pradesh, Sitamarhi, Buxar, Darbhanga in Bihar, Odisha's Mahendragiri, Nashik and Nagpur in Maharashtra, Rameshwaram in Tamil Nadu, to right into Sri Lanka.
2 years ago, Prime Minister Modi and his Nepali counterpart KP Sharma Oli flagged off a direct bus service between the birthplace of Sita, Janakpur, and Ayodhya. But the Ramayan circuit is not only about rail and road transport. The project involves overall infrastructure development at key destinations, from nature trails, watchtowers, Wi-Fi, site restorations to the last mile connectivity. This scheme involves a synergy with other major schemes like Make in India, Swachh Bharat Abhiyan, skill development. The idea now is to make sure that the religious tourism is used as a driving force for the economic development of the temple town of Ayodhya. With Himanshu Mishra, this is Aishwarya Paliwal for India Today from Ayodhya with camera person Pradeep Gupta. The man on the ground who's literally supervising the process of building this new Ram temple and pushing ahead with the Ramayan circuit in Uttar Pradesh is the state's Chief Minister Yogi Adityanath, who had a critical role to play in today's ceremony and will have an important role going forward. We caught up with him in Ayodhya, where he laid out his plan for the next several months. Here it is, this exclusive conversation with the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. जब आपने उत्तर प्रदेश को संभाला, उस दिन से आप अयोध्या बार बार आप आने लगे, आपके दौरे बढ़ने लगे, लोगों ने बहुत सारे सवाल भी किए, कई कटाक्ष भी होते थे आपके ऊपर कि आप राम जी की प्रतिमा सरयू घाट पे बनाने वाले हैं, लेकिन राम मंदिर कब बनेगा? आज आपको लग रहा है कि वो सारी चीजें अब दूर हुई, अब आगे सिर्फ राम मंदिर का निर्माण? देखिए, इस कार्य का श्रेय, आज की तिथि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके प्रयास से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 500 वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत समाधान निकला और 500 वर्षों से चल रहे संघर्ष को उन्होंने शांति के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक बना दिया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। दूसरा, एक लंबे संघर्ष के लिए जिन पूज्य संतों ने, धर्माचार्यों ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, इसमें बहुत सारी पीढ़ियां तो ऐसी हैं जो आज की तिथि को देखे बगैर ही इस धराधाम को छोड़ के चली गई। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन सबकी आत्मा को भी भारी संतोष का अनुभव हो रहा होगा और मेरे लिए तो एक गौरव का क्षण है। योगी जी, आप सबके चेहरों पर एक आयोजन का सिर्फ भाव नहीं था, बल्कि काफी भावनात्मक लम्हा लग रहा था वो। देखिए, हमारे लिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मेरे लिए तो अत्यंत भावुक क्षण था, गौरव का क्षण भी था, उत्साह और उमंग का क्षण भी था। उत्साह और उमंग का क्षण इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार बाहर की सुरक्षा की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और पिछले 3 वर्षों से मैंने उस कार्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। उस नाते मुझे पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया, उस दायित्व के नाते मैं इस कार्य को यहाँ पर करने में आज अपने को स्वयं सौभाग्यशाली मानता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं। आपकी दूसरी जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, उन सबको ये था कि आप लोगों ने बाकियों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्यों ऐसा रखा कि सिर्फ अपने अपने जो आपके लिए सही है उन्हीं को बुला रहे हैं, बाकी जो आना चाहते हैं वो आ नहीं सकते। देखिए, राम सबके हैं, ये बात तो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। ये सद्बुद्धि तब भी आनी चाहिए थी जब यहाँ पर कुछ लोगों के पूर्वजों ने रामलला की मूर्तियों को हटाने की कुत्सित चेष्टा की थी। आखिर कौन लोग थे वो, किसके पूर्वज थे जो अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं चाहते थे? कौन लोग थे जो गर्भगृह में जहां आज शिलान्यास हुआ है 1989 में वहां शिलान्यास न करके वहां से 200 मीटर दूर कह रहे थे कि वहां शिलान्यास हम करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होना है, विवादित ढांचे में कुछ नहीं करना है। हम
चाहते थे सभी लोगों को बुलाना है और हम जानते थे कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम होगा, यद्यपि आयोजक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ही है, लेकिन बाहर की व्यवस्था की दृष्टि से हम उसमें उनको सहयोग कर सकते थे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के नाते सीमित संख्या में लोगों को बुलाना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के सभी मत संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य धर्माचार्य इस कार्यक्रम में सहभागी बनना चाहते थे। सीमित संख्या में लगभग 200 के आसपास अतिथि इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन पाए। हमारा विचार परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई पदाधिकारी इसमें नहीं आया। ये केवल कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी का नहीं, बीजेपी का कोई पदाधिकारी यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में आ सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में आ सकते थे, कोई इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं। सीमित संख्या में अतिथियों को बुलाकर के एक शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ कर देना, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, इस दृष्टि से हम लोग इस कार्यक्रम को रखे, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू करना था, लेकिन एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को भी अब बिना विलंब किए आगे बढ़ाना था। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम हम लोगों ने इस रूप में किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण था और मेरा ये मानना है राम सबके हैं, सभी लोगों को राम के काज में सहयोग भी करना चाहिए, सहभागी भी बनना चाहिए, लेकिन राम के नाम पर समाज को बांटने की कुछ सी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि आप लोग करते हैं। नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सबको जोड़ा है। हमारे यहाँ तो हमने कौन सा ऐसा समुदाय है, मत और संप्रदाय है जिसको इस कार्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक था, उनको यहाँ ट्रस्ट ने आमंत्रित भी किया, वे आए भी हैं, इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। लेकिन हमने राम के नाम पे राजनीति नहीं की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए जो कुछ हो सकता था, उस कार्यक्रम के साथ जिस निष्ठा के साथ 1984 में जुड़े थे, उसी निष्ठा के साथ 2020 में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर 1949 में इनकी भावनाएं क्या थी, 1984 में क्या थी, 1990 में क्या थी, 1989 में क्या थी, 1992 में क्या थी, उसके बाद क्या थी, और उसके बाद भी समय समय पर कभी कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता था, कहता था इसका समाधान नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें में लोगों के इन वास्तविकताओं को भी देखना चाहिए कि लोग बोलते कुछ और हैं, इनके अंतःकरण में कुछ और होता है। हम लोगों ने जो कहा उसके अनुसार किया। हमने जिस रूप में राम को देखा है, उसी के अनुरूप राम के अनुसार हम लोग अपना जीवन भी जिए हैं। This is where we wrap up the news track tonight. I look forward to seeing you at 8 p.m. tomorrow evening with another action-packed edition of the news track. Till then, from all of us here, goodbye, good night.